Hi guys, welcome back to my channel. मैं अमृताराम नोक्चरी ngasi video shidi अखोई college na puraga अखोई job na trip चटपगी video ने मैम अदो job na trip से चतुज मफम जिस अखोई सिदगिना पुंग अमा मखाई लंबी ने बको अदो चटपदो कमाइन तौगी खोट के हाबदो मैम तम तम नोचरके दो होरन आदे होरगा video नंबर या तारगदी video नमगसु मैम ने तुम हापचरके मैम लोग फावो येंबियो हिमानी इधर देखो ना मुड़ के देख भाई इसको मुड़ के कितना खुश हो रहा है देख उसको कोई दिक्कत हो रे टोल के पैसे आप ले वहाँ से ऊपर आगे बैठे नहीं ये बहुत सही जगह बैठे हैं बढ़िया यहीं बैठो और क्या बोलो सर नुंगाइरी सर ahun Taruk tarek mipa mapa Tara tarama tarani ले कोई बहुत सारे देखिए मैं सोचती हूँ एक ट्राई करूँगी और दे देंगे प्लांट ब्रीडिंग की तो चटनी है कोई हजिक से that is annuals. Generally, most of the spices that we grow here are rabi spices. So you'll be going to the field and you'll be seeing rabi spices. Then there is also work on oil seeds, and in the oil seeds there is a crop that is called as taramira. Taramira is a relative of rapeseed mustard. And the oil is just like the mustard oil. Only thing is that it is used in many of the industrial applications rather than eating, because it has got higher eukaryotic erucic acid, etc., and therefore it is not preferred for eating. However, it is also mixed in the rapeseed oil. टिश्यू कल्चर चल रहा है कि टिश्यू कल्चर चल रहा है सर? Yeah, where the propagation also called as micropropagation. Micropropagation is production of large number of plant in from very small plant part, and that plant part is called as the explant. Yeah. So your explant could be anything. That could be a stem part, or that could be a seed, or that could be a pollen. Any plant part that is used to produce the large number of plant. Then the question is, why you go for tissue culture? Why you go for micropropagation? So what is your answer? Production of large number of plants. It is mainly used for the clonally propagated crops. Because in seed propagated crops, no problem. You can produce large number of plants from the seed. But in the perennial crops, there the multiplication will be very late. So you can produce the large number of plant in small space. And also you can produce the virus-free plant. Then some of the seed plant like orchids. So nowadays lots of demand of orchids is there. But there is a problem in orchid seed, that is the dormancy. They are going to be long time dormant. That's why you will go for the embryo rescue. So many techniques are there: pollen culture, embryo culture, interspecific hybridization. Lots of techniques are there. But generally, the major procedure of this plant tissue culture is you have to collect the explant, then sterilize the explant, inoculation and incubation. The major steps. So first you have to collect the explant. Now this is the aloe vera explant. We have taken this is the single plantlet, and we are using this for the multiplication.
Now the media will be the MS media, Murrah Cube media. Now, see, you can see here this is the solid media, right? And this contains all the micronutrients, mineral, everything that is the present in the normal soil. So this will be called as the artificial soil, right? This is like artificial soil. You have everything is supplemented here, and then you have to put the growth regulator, put the explants, and then that will be grown. So first you have collected the explant, right? Suppose I have collected this explant, then sterilization. So why we go for the sterilization? To kill the micro. Yeah, to maintain the aseptic condition. Because in case of micropropagation or tissue culture, the major problem of the contamination. So contamination will be here the fungus type mainly. Bacterial will also be there, but very less. Mainly the fungal contamination will be very much. That's why you have to maintain all the steps of sterilization, starting from the explant. For explant, we will go for the mercury chloride or sodium hypochlorite or sometimes alcohol. So again the percentage is varied. This much concentration we have to take, and exposure time is again varied from species to species. If you take the leafy type, meristematic type explant, then less exposure. If you take like this stem cutting, this is anar cutting, pomegranate explant, that is nodal part. So if you take this type of cutting, you have to expose for more number of time. And then the types of sterilization is there, starting from this explant sterilization, then wet sterilization, dry sterilization, flame sterilization, alcohol sterilization, ultraviolet sterilization. So lots of types of sterilization is there, and each and every step you have to maintain the sterilization process. Then also your microbes, they are smarter than us. Still there is a lots of contamination. Then the major problem is the contamination. So you have seen this media, you have seen this explant. So first we are going to sterilize this explant, and simultaneously media preparation. Media preparation will be done actually one day before you have to go for the work. Suppose tomorrow you have to start up the work. So today only prepare the media, sterilize it, and keep it in the inoculation chamber overnight. So in that between that time this will be solidified, and next day you can easily put your explant. Now what we do, we are going to next step is the inoculation. So that room you can see there, it is written inoculation room. Now what is the meaning of inoculation? What is the meaning of inoculation? You have this media, you have explant. So transfer of explant from outside to the directly to the media, that process is called the inoculation, right? And that will be done in the laminar airflow chamber. You can see there. Have you seen any time laminar airflow chamber? Yes, ma'am. Have you seen? Yes, Very ma'am. good. So inside there will be UV light. Yes, ma'am. HEPA filter, so that the air will be blown, and you have to work everything under the spirit lamp, right? So that will be done, and there you have to go for UV sterilization as well as flame sterilization. There alcohol sterilization simultaneously we are going to follow. So after inoculation we are going to keep this single explant inoculated into the incubation chamber, incubation room. So that will be the incubation room. We will not allow all the students on outsider to enter because there are lots of contamination. Again there is a problem. Then we are going to keep this culture for around 1 month for multiplication, and there we are going to maintain the temperature, then photo period and moisture. Temperature will be 25 plus minus 7. That nowadays so no problem, temperature is less, but in summer days we are going to maintain that with the AC. 2 ACs is there, 1 in day and 1 night. Then photo period we are going to give 16 hours of light and 8 hours of dark. So based on that we will keep whenever. Now that photo period will be maintained by the, so there will be cultural racks. You can see from the outside, I'll show you. We'll remove some curtain a little bit, and that culture racks will be fitted with the tube lights, and that tube lights of particular intensity, 1000 lux, 2000 lux. So based on requirement, we are going to switch on and switch off all the photo that light, and humidity 60 to 70. So if it is needed, we are going to give through the humidifier we have, and like that after 1 month. So this is multiplication, you can see many 10, 20, and after multiplication we are going to, bigger one we are going to transfer to the rooting media. So again there is a rooting media and shooting media. If you want to lots of shoot, you need to put cytokinin, and if you need root, you have to put the auxin. So here you can see some roots in same only, and if they are very good surviving, then we are going to transfer it outside for hardening. So last step is hardening. First is the explant, collection of explant, sterilization of explant, inoculation, incubation and hardening.
These are the only 5 steps. If you go in detail, each and every steps will be very, very detailed. You have to go for media preparation, and the big procedure is the sterilization, again everything, that is continuous process. So you should not stop in between. If you take a holiday, then everything will be gone. So like this pot, and if this is hardening, primary hardening, and if the plants are going to survive here outside, then we are again going to transfer to another glass house. So there, if they are again surviving, then you have to transfer to the field. So like that procedure is there. I'll remove the curtain, you can see from there. का बोलना बंद करो तो हम बाहर जाए। क्या है? नहीं क्या है? क्या तो बोल एक्सप्लेनेशन देता है ना, वही गंदा होता है। मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सुनते नहीं हो तुम लोग। टोटली रिसर्च का और प्लांटेशन के लिए सारा का सारा पानी ये हमारा रेन हार्वेस्ट वाटर है। और टोटल यहाँ पे जो हमने कैंपस के अंदर ये 11,000 करोड़ लीटर वाटर स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप की हुई। क्योंकि राजस्थान में हमारे पास पहले ही पानी नहीं है, हमारे पास में यही एक जरिया है जिससे हम वाटर को कंजर्व करके इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जितना भी हमने बारिश कम हो रही है जब से बनाया तो फुल कैपेसिटी में अभी तक ये भरा नहीं है। जिस दिन फुल कैपेसिटी में भर जाएगा उस दिन हमारा जो 500 बीघा का ये फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म इससे हम कवर कर सकते हैं। 40 मीटर गहरा है ये, नहीं सॉरी 40 फीट। और इसके अंदर 3 तरह से है। उधर से एक आउटलेट बना हुआ है जो इस पहाड़ी का पानी है, इस तरफ का जो कॉलेज की तरफ आ रहा है, उसका मार्केट में जो बाजार है उससे हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। प्लस इधर हमारी पूरी जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, क्वार्टर्स है, गेस्ट हाउस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग है, उसको सारे को कनेक्ट कर रखा है इधर से। तो ये टोटल पानी मतलब इन तीनों के अंदर, जैसे इस बार ये लगभग हमारा फुल हो गया था और इसके अंदर हमने 20 फीट के आसपास पानी कलेक्ट कर पाए थे, बाकी का ये खाली रहा था। और इसी से अभी पूरा का पूरा जो भी हमारे आप देखेंगे फसलें लगी हुई है, मतलब हर एक क्रॉप लगी हुई है, एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल, सारा इसी से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और इसी वाटर का यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्लीटली सफिशिएंट है दोनों? हाँ, कुछ पानी हमने 1-2 ट्यूबवेल भी बना रखे हैं नया बास, यहाँ तो ग्राउंड वाटर है नहीं, तो वो ड्रिंकिंग में लेते हैं, कुछ एक्सेस रहता है उसको फिर इसी के अंदर साथ में मिक्स करके देते हैं। ये क्या नाम था कल मैंने किया था? सर पूछे क्रॉप कौन सी है ये जो लगी हुई है? मेथी फेनुग्रीक। मेथी पेनो। और स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट में इसको सोविंग करते हैं उससे पहले एक बार स्प्रिंकलर से पूरा करने के बाद में सोविंग किया। और मेन पाइप से ये डॉक्टर एस राजपूत सर है, स्पाइस स्प्लिटर, ये आपको बताएंगे इनके बारे में। कैसे काम कर? दिस इज सेल पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल पॉलिनेटेड है, डिप्लॉयड है। These are the different coordinated trials. These are separate entries in individual plots. तो इसको नेशनल ट्रायल कैसे लगते हैं कोऑर्डिनेटेड ट्रायल? इसमें क्या होता है, देश में जितने भी सेंटर्स हैं ना, डिफरेंट सेंटर इन द कंट्री, वो अपनी अपनी एडवांस लाइंस को फीड करते हैं, फिर उनको टेस्टिंग होता है मल्टी लोकेशन ट्रायल्स में, वो ये ट्रायल है। हाँ, तो ये वी आर टेस्टिंग 18 एंट्रीज ऑफ द फेनुग्रीक एट नेशनल लेवल, which also included some commercial varieties, popular commercial varieties, which has been developed recent past. तो ये वो ट्रायल है ना फेनुग्रीक। It takes about 140 to 150 days to mature. 140 से 50 दिन की क्रॉप है ये।
चलो आगे चलो। देखिए कभी भी कोई वैरायटी होती है ना, वैरायटी से रिलीज होगी लास्ट में, तो सिंपली क्या होता है कि हर एक ब्रीडर अपनी एक एंट्री तैयार करता है, सिलेक्शन से करे चाहे वो क्रॉसिंग से करे, जो भी वो मेथड अप्लाई करता है प्लांट ब्रीडिंग के, उससे एक लाइन तैयार करता है। और वो लाइन क्या करेगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का जो पीआई होता है वहाँ पे सबमिट करता है कि ये मैं एक वैरायटी मैंने डेवलप की या मैंने सिलेक्शन से तैयार की है। तो ऑल इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब अपनी अपनी एंट्रीज वहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में वहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है वो उस एंट्री को डिफरेंट लोकेशन को भेजता है। सबसे पहले इनिशियल वैरायटी ट्रायल टेस्टिंग होती है, फिर किसी में एडवांस वैरायटी ट्रायल टेस्टिंग होती है, उसके बाद में वो कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में जाता है और फिर फाइनल ट्रायल होती है। यानी 3 साल तक वो वापस टेस्टिंग होगी कि आपने जो एंट्री फीड की है वो रिलीज नोटिफिकेशन के लिए अपना जो विगर है वो शो कर रही है नहीं कर रही। तो ऑल इंडिया की जितनी भी वेराइटीज़ हैं उन वेराइटीज़ में जो टॉप 2 वेराइटीज़ होगी वो आगे प्रमोट की जाएगी नोटिफिकेशन और रिलीज के लिए। बाकी की जितनी भी एंट्रीज है वो वापस से आप क्रॉसिंग प्लान में लीजिए और उनको रिपीट में चलाइए। वेराइटी जब तक अपना 5 to 10% यील्ड एडवांटेज नहीं लेके आएगा जब तक वो वेराइटी रिलीज या नोटिफाइड नहीं होगी। तो उसके लिए ये हम कोऑर्डिनेटेड ट्रायल ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डिफरेंट रीजन में अलग अलग सेंटर्स पे सब जगह है। तो एक सेंटर हमारे पास यहाँ पे है सीड स्पाइसेस का, उसके अंतर्गत ये लगी हुई है। इसमें ये जो ब्लॉक बने हुए हैं आपको ये प्लॉट दिखाई दे रहे हैं, इनमें सब में अलग अलग एंट्रीज हैं और रेप्लिकेशन के अंदर लगी हुई है। तो इनमें यहाँ पे सारे सेंटर के लास्ट में डाटा एक जगह होंगे और जो बेस्ट एंट्रीज होगी उसको फिर रिलीज और नोटिफाइड के लिए भेजेंगे। डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर तो डिफरेंट प्रोडक्शन होगा। हाँ। तो फिर कैसे हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे? ऐसा करेंगे ना अपन, देखिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है तो यहाँ के एनवायरनमेंट में जो भी वेराइटीज आई सबको एक जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, यहाँ पे सबको एक जैसा इरिगेशन फर्टिलाइज सारी मिल रही है। डिफरेंट सेंटर पे गए वहाँ पे अलग डाटा है, लेकिन इन डाटों को सबको साथ में पूल करेंगे हम। मान लीजिए यहाँ 10 kg यील्ड आई, किसी सेंटर पे 15 kg आई, किसी पे 16 kg आई, किसी पे 8 kg आई, सबको टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया। तो जो एंट्री एडवांटेज लेगी उसको हम आगे प्रमोट करेंगे, अन्यथा बाकी को नहीं करेंगे। ऐसा इसका सिस्टम रहता है। तो ये यहाँ पे एनकोड होके आती है, कोई पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी कौन सी है। वो बाद में जब डिकोड होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये एंट्री किस सेंटर की थी। यहाँ पे सिर्फ कोड नंबर से आएगी वो एंट्री और अपने को खाली इसको टेस्ट करके इसके वापस जितने भी डाटा है वो वापस से सबमिट कर, ये थिंग्स रहती है जिसमें डिफरेंट जर्म प्लाज्म वगैरह सब रहते हैं। चलिए to the site. It is intercropping with fennel and coriander. No doubt. These are also agronomical trials. नहीं, बोर्ड पे इसके बारे में डिस्कस करें। क्या क्या क्रॉप्स हैं, क्या स्पेसिंग है, क्या क्रॉप ज्योमेट्री है, कौन सा डिजाइन है। Clear cut. This is brinjal crop and it has been destroyed totally because of the continuous frost in since last 3-4 days. The temperature dropped to -4. -4 and -1.5, -3 continuous 3 days. The whole crop has been damage. brinjal is a बहुत sensitive crop. कौन सी ईयर के स्टूडेंट्स हैं? ये 3rd ईयर। तो मीटरोलॉजी का कोर्स तो चल चुका होगा इनके? पैन इवापोरेटर क्या यूज़ है इसका? एवापोरेशन कितना हो रहा है? बिल्कुल, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये अंदर एक बिकट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सुबह इसको फुल फिल किया जाता है, इसके स्केल बनी हुई है उसके साथ में। आफ्टर इवनिंग या आप ये कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद में इसे वापस से मेज़र किया जाता है कि पूरे दिन के अंदर कितना पानी जो है इसका इवापोरेट। ठीक है, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन 2 टर्म्स हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो ये इवापोरीमीटर जो है ये यहाँ का मतलब इस एरिया का कितना पानी इवापोरेट हो रहा है 24 आवर्स में तो नोट। ठीक है, यह रेन गेज कितनी बारिश हो रही है उसे मेजर करने के लिए इस रेन गेज को यूज़ किया जाता है। ये आपका एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, बारिश जो हो रही है वो ड्रॉप टू ड्रॉप इसके अंदर जा रही है और इसके बाद में इसके अंदर ये बॉटल देखिए, ये बॉटल है जो इस पानी को स्टोर करेगी। इस पानी को
निकाल के और बीकर के अंदर जो एक आपकी स्केल जिसके ऊपर होती है उस बीकर में डाल के आप इसे नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कितनी आपकी रेंज जो हुई है उस टाइम के अंदर हुई है। जैसे आपने देखा होगा ना पेपर के अंदर आता है कि 3 mm बारिश हुई है या 4 mm बारिश हुई है, वो इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी स्केल के थ्रू से देख नहीं सकते, ये रेन गेज में हेल्प करता है। आइए हाँ बहुत सारे थर्मोमीटर्स यह है स्टीवेंशन स्क्रीन, ठीक है। इसमें आप लोग ये जो देख रहे हैं दो जो थर्मोमीटर हैं ये तो हॉरिजॉन्टल है और दो थर्मोमीटर जो लगे हैं ये है वर्टिकल। वर्टिकल थर्मोमीटर जो है आपकी ह्यूमिडिटी के लिए काम में आते हैं और ये जो आपके हॉरिजॉन्टल थर्मोमीटर है ये मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर को मेजर करता है। मैक्सिमम थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर मर्करी होती है और मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। अभी जो सर आपको बता रहे थे कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे, वो इसी थर्मोमीटर के थ्रू हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं और यही आगे फोरकास्ट हो रहा है, ठीक है। कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं इसके अंदर, इसे जो थर्मोमीटर मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। सुबह 7-8 बजे के आसपास इसको मेजर किया जाता है और फिर 2 बजे के बाद में, तो इसको यहाँ निकालकर और इसे सीधा करके देखा जाता है। थर्मोमीटर जो इसका मर्करी जो होता है वो जितना ऊपर अप कर रहा है उससे मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। एक चीज आप ये देख लीजिए, इसको आगे मैं समझाने वाला हूँ, इसको बोलते हैं सनशाइन कार्ड, ठीक है। इसमें आपको ये एक लाइन दिख रही होगी कटी हुई, दिख रही है सभी को। ये लाइन का क्या लॉजिक है अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, विंड गेज, क्या है, विंड गेज, एनीमोमीटर। क्या वर्क है इसका। विंड स्पीड मीटर जो है ना वो हमेशा स्पीड बताएगा, गेज जो है वो डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें आप देखिए ये 3 आपकी एक कपलिंग लगी हुई है इसमें और नीचे एक मीटर लगा हुआ है। ये मीटर जिस तरीके से ये जितनी तेज हवा की स्पीड होगी ये रोटेट होने लगेगा और यहाँ पे ये जो मीटर है इसके अंदर इसकी रीडिंग शो होने लगेगी। तो कितनी किलोमीटर पर किलोमीटर आवर की स्पीड चल रही है हवा की वो हम यहाँ से नोट करते हैं, ठीक है। देखिए ये है सनशाइन कॉर्ड या कंबल स्टॉक भी बोला जाता है इसे। इसमें आपको दिख रहा होगा ये ग्लोब जैसा एक बहुत मतलब ये बीच में खाली नहीं है, जैसा आपका पेपर वेट होता है ना भरा हुआ उस टाइप से पूरा एक कांच का ही गोला है। ये क्या करता है आपको जब इसे रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया था ना, कर्व कार्ड भी बोलते हैं उसे, सनशाइन कार्ड भी बोलते हैं, तो उस कार्ड को यू शेप के अंदर इसमें लगा के छोड़ दिया जाता है। ये काम होता है शाम को जैसे ही सनसेट हो जाता है उसके बाद में। अब इसके बाद में जैसे ही सुबह सूरज राइज होगा उसके बाद में क्या होगा, जैसे सूरज की पहली किरण आएगी, वो आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा एग्जांपल मोस्टली सभी बच्चों ने किया होगा, हमारे टाइम भी हुआ करते थे। बच्चे क्या करते थे, कोई कांच का टुकड़ा या जो ग्लास होता था या स्पेक्स जो होते थे उन्हें लेके और एक कागज को जलाया करते थे, तो एक छोटा एक पॉइंट बन जाता था रेज का। वही सेम वर्क हो रहा है यहाँ पे भी। ये जो कार्ड जो है ये जैसे जैसे सूरज आगे फ्लो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो एक छोटा सा एक पॉइंट जो है वो इसके थ्रू इस जो ये कार्ड बना हुआ है इसके ऊपर चलता जा रहा है और वो क्या कर रहा है, इसे उस कार्ड को जलाते हुए चलता है। अगर बीच के अंदर ये मानिए अभी जैसे 12:30 बज रहे हैं, 12:30 से 2 बजे तक यहाँ पर जो क्लाउड्स हो चुके हैं, सूरज जो है ये पूरी तरीके से छिप चुका है, तो ये क्लाउड्स जो है तो टाइम के साथ में सूरज जो है वो तो अपनी मूवमेंट तो कर रहा है, तो इतना टाइम जो है ये कार्ड जो है ये जलेगा नहीं, ठीक है। इस बेसिस पे हम ये शाम को जब इसे 5 बजे बाद में यहाँ से हटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरे टाइम के अंदर जो सनशाइन हुई है वो टोटल कितनी हुई है, क्योंकि सारे दिन तो आप बैठ के एक रजिस्टर को मेंटेन कर नहीं सकते। ये कार्ड ही आपकी उसके अंदर हेल्प करेगा कि सूरज जब सुबह राइज हुआ है तब से लेके सेट होने तक कितने टाइम तक सनशाइन हुई है। क्लियर। हाँ, एक मैं आपको और पूछना चाहूंगा, इसे ऊपर क्यों रखा, नीचे भी तो रख सकते थे, कोई वजह होगी इसकी, कोई लॉजिक है। जनरल छोटा सा क्वेश्चन है, आप में से भी कोई मुझे पूछ सकता था, मैंने आपको पूछ लिया, आपने नहीं पूछा, तो कि इसे ऊपर ही क्यों रखा, यहाँ पे नीचे इस वाली स्ट्रैप पे भी तो रख सकते थे, डायरेक्ट सनलाइट क्या नहीं आती। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे पे डायरेक्ट सनशाइन नहीं आ रही है, यहाँ ऊपर ही क्यों रखा है, एंगल बना के रखा है इसे ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सके। नो आप इसका जो मेन रीजन जो है वो ये है कि हो सकता है यहाँ आसपास में कोई जब सूरज राइज हो रहा है उस टाइम पे देखिए वो पेड़ है वहाँ पे, वो उस पेड़ की एक शेडो आ रही हो यहाँ पे, तो वो वहाँ पे उसे नहीं कवर कर पाएगा ना, इसलिए इसको थोड़ा सा हाइट पे रखा जाता है। और दूसरी ये ऑब्जर्वेटरी जो है इसका एक रूल है कि इसके आसपास के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग और बड़ा कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। देखिए आसपास में नहीं है, कुछ एक डिस्टेंस के साथ में अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ पे क्या है, ये विंड वेन, ये आपका
विंड की डायरेक्शन शो कर रहा है। इसके अंदर आप देखिए जनरली हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साथ में इसमें अलग से 4 और ये एरो निकले हुए हैं, ये कर रहे हैं आपको साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। तो डायरेक्शन किस तरफ से आ रही है विंड की, वो हम यहाँ से पता कर लेते हैं। क्लियर? इसके अंदर एक ग्राफ पेपर लगा हुआ होता है, साथ के अंदर उसमें एक नीडल होती है। तो जैसे आपने वहां पे देखा तो उसे तो आपने क्या किया, एक बीकर के अंदर देख के बाद में मेजर किया था। यहाँ पे टोटल कि कितने टाइम पे कितनी रेन हो रही है वो उसे मेजर करते हुए चलता है। क्लियर? सर खाना है ना, हाँ सर 2 लेके मोटे वाले दे रहे हैं। ये पी है, पी। ये मटर पी। ये मटर है शायद। हाँ, मटर ही है। गोपिया। क्या गोपिया अंकल क्या करने पे यूज करता है? पक्षी को उड़ाने के लिए पत्थर फेंकने के लिए यहाँ पत्थर रखा जाता है, तो ऐसे राउंड काट के एक मुँह छोड़ना पड़ता है। कौन सा एक बार दिखा दो एक बार। मैं खुद फेंकना नहीं जाता, चिपरी आता है वो मुझे आता है। हेलो सर पे कौन आप सर से बता दो सर। कहने लग जाएंगे मम्मी क्या है? एक दो लकड़ी, एक लकड़ी तो खड़ी, ट्रीटमेंट है ना, वो सब चीज़ें इन पे टैगिंग की हुई है। मम्मी कौन सी क्रॉप है? क्या होगा चना। टेक्निक के लिए सर